Okay, so today we are going to discuss our first chapter, which is very important for your examinations. If we look to the examinations which is coming in nearest time, which is IBPS, PO, Clerk, RRB, Scale 1 Mains rather, this section is going to play a pivotal role in your examinations, right? So, and this chapter is nothing other than verb, which is called the pillar of English. Why? Because within this sphere, everything depends. Means the sentence structure, uh, the syntaxes, the error portions, the fillers, column matching, everything. Okay, means without verb, there can never be a sentence, isn't it? And we all know that. So, in order to know these sections very clearly, we need to analyze how these sections is important to us, isn't it? Okay, चलो शुरू करते हैं आज का sections. So can you tell me that what is verb? Can anyone tell me what is verb? Let's have a free discuss. What is verb? Doing word or action word that indicates actions rather, isn't it? Anything else? Anything else? Okay. So if you consider my definition that verb is a doing word, this is absolutely right. Rather, if you say that verb is a word that suggests an actions, and number 2 points is that which helps us to form sentences, isn't it? He is a boy. Is, if we say is, क्या is यहाँ पे कुछ एक्शन सजेस्ट कर रहा है? नहीं ना. लेकिन क्या हो रहा है वो? It helps us to form sentence, isn't it? Clear? Okay. So we can say that a verb is a word that suggests actions and helps us to form sentences. So how many types of verbs are there? As you can see, the slides is showing that basically I am saying this basically there are two kinds of verbs. What are those? One is helping verb, another one is main verb. Okay, and within this sphere of helping verb, modal comes, auxiliary verbs comes. Okay, modal verbs, देखो इतना कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ जान लो कि मॉडल वर्ब्स क्या है और मतलब किस किस को मॉडल वर्ब कहते हैं और उसका यूज़ कैसे किया जाता है. ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को देखेंगे. ठीक, उसके बाहर बहुत कुछ है. ठीक है, इंग्लिश इज़ एन ओशियन. If you fall into it, you can realize that English is an ocean. There is numerous rules, various kinds of ways, typical ways to acquire this topic. But we will discuss those only which are needed for your examinations. Okay. So if we divide verb, basically there are two kinds of verbs. One is helping verb, another is main verb. So helping verbs can also be called as auxiliary verb. Okay, remember that. बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए. ठीक है, क्यों डिवाइड किए वो बाद में डिस्कस करता हूँ, क्यों इसको डिवाइड किए. तो ऑक्सिलियरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, बी वर्ब भी बोल सकते हैं. ठीक है, बी वर्ब भी बोल सकते हैं. बी वर्ब क्या है, बी वर्ब क्या है, वो एम इज आर जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब को भी बोलते हैं. मतलब हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, बी वर्ब वो सब एक जैसा ही है. एक्सेप्शन क्या है मॉडल में, मॉडल में एक्सेप्शन है. ठीक है, मॉडल क्या है, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, ये सब को हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं. और टू. ठीक है, और ये मॉडल्स के लिए एक रूल्स लिख लो कि V1 प्लस ING, सबके पास कॉपी होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ जो है वो उसको नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, कि मॉडल विल बी फॉलोड बाय V1 प्लस ING, मतलब मॉडल के बाद कभी भी सॉरी 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 वन थिंग आई हैव टोल्ड यू, Mr. Ganley,
दैट मॉडल इज फॉलोड बाई ओनली V1, बेयर इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल भी इसमें नहीं होगा, ओनली V1, मॉडल इज फॉलोड बाई ओनली V1, ठीक है, not V1 plus ing. I am extremely sorry about it. Modal is followed by only V1. He can go to the hospital. He can lift the box. We must watch the movie. We ought to visit the hospital. Okay. So there are various kinds and ways to use modals. कैसे उसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि ought to को हम यूज़ करते हैं क्या मॉरल ऑब्लिगेशंस के रूप में यूज़ करते हैं, एडवाइस जब कोई करता है तब ऑटो का इस्तेमाल होता है, कैन को हम एबिलिटी के रूप में यूज़ करते हैं, वायरस कूड को हम क्या करते हैं कोई पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, मे परमिशन हो सकता है, माइट को हम पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन मे का पास्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ यूज़ है, लेकिन हम लोग उतने डिटेल रिसर्च में भी नहीं जाएंगे क्योंकि बैंकिंग में उतना डिटेल पूछता नहीं है, पर्टिकुलरली मॉडल सेक्शन से। बैंकिंग का क्वेश्चन जो डिपेंड करता है वो किस में डिपेंड करता है, वो वेरिएशन में डिपेंड करता है, बेसिक चीज़ों को वो लोग घुमा के पेश करेगा, वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब की ओर जाते हैं, हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, मेन वर्ब्स। आज तक हम लोग क्या जानते थे कि मेन वर्ब्स का 3 टाइप होता है, ओनली 3 टाइप्स, V1, V2, V3। V1 यहाँ पे क्या है, कोई बोल सकते हैं V1 क्या है, कैन एनीवन? यस, वेरी गुड, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस कोई लिख सकते हो, बाद में इसको मेंशन करूँगा। V2 क्या है, पास्ट। V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, V4 क्या है, कोई बोल सकता है V4? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज V4? देखो V4 क्या है, हाँ बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ING फॉर्म ऑफ, जो कि ING लेता है, उसके बाद वर्ब का फॉर्म जो ING लेता है उसको हम V4 में काउंट करते हैं, जैसे कि जिरांड होते हैं, ठीक है, जिरांड फॉर्मेशन, पार्टिसिपल फॉर्मेशन, पार्टिसिपल फॉर्मेशन। अब हर कोई पार्टिसिपल तो ING फॉर्म लेता नहीं है, जो पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल वो ING फॉर्म लेता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल तो ING फॉर्म नहीं लेता। पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, V3 में, क्लियर। और V5 क्या है, कोई बता सकता है V5? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज V5? V5 वी कंसिडर एस और ES, नहीं एस और ES, ED जो है वो हम V3 में काउंट करते हैं ज़्यादा, है ना, पास्ट पार्टिसिपल में ज़्यादा काउंट करते हैं, लेकिन वर्ब विथ एस और ES उसको हम किस में काउंट करेंगे, V5 में, क्लियर। जैसे कि गोज़, ठीक, प्लेज, उसको बोलेंगे V5। इसका इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसको जानने की उतना भी गहराई से जानने की ज़रूरत है नहीं। ये मेन इम्पॉर्टेंट है V1, V2, V3, V4 को हम कभी कभार यूज़ कर लेंगे, नहीं तो वो V1 प्लस ING इसके रूप में ही देखेंगे उसको, क्लियर, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। मॉडल के जो रूल्स है हमेशा याद रखना, मॉडल प्लस V1, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वी कैन गो टू द पार्टी, मे आई कम इन, ठीक है, हमेशा देखना कि उसके बाद V1 फॉर्म ही वर्ब आता है, ये V1 फॉर्म, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो जो कि बोल रहा था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट ऑक्सिलरी वर्ब, बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऑल आर सेम। सो आई हैव डिवाइडेड दिस सेक्शंस अकॉर्डिंग टू टेंस। There are 3 kind of tenses, we all know that. So टेंस के भीतर इतना भी ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं इस चैप्टर में, सिर्फ वर्ब को डिस्कस करने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस स्ट्रक्चर फॉर यू। सो प्रेजेंट, इफ यू लुक एट प्रेजेंट टेंस, the auxiliary verbs are am, is, are, have, has, okay. In case of past tense, auxiliary verb are was, were and had. In case of future tense, shall and will. These are called auxiliary or be verb or helping verbs, okay. And I have segregated this portion
for your convenience. This do verb is also called auxiliary verb or helping verb. Why? Because they helps us to form sentences, as simple as that. लेकिन do verb हम किस लिए मेंशन किए? क्योंकि इंटरोगेटिव में वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जब ऑक्सिलियरी वर्ब रहता नहीं है तब हम लोग डू वर्ब का इस्तेमाल करके स्टेटमेंट को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल लेते हैं. ठीक है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा. सिर्फ इसको यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन नोट इट डाउन. तो प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? डू डज. डू होता है क्या? फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, एंड ऑल प्लूरल फॉर्म के साथ क्या होता है? डू वो. एंड डज के साथ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे कि ही के साथ डज, इट के साथ डज, किसी भी नेम के साथ डज. ठीक है, वही पास्ट में क्या बन जाता है? डिड. फ्यूचर में इसका कोई स्ट्रक्चर है नहीं. सिर्फ यहाँ तक समझ लो. ठीक है, डिटेल जो है वो बाद में डिस्कस होगा टेंस के टाइम पे. यहाँ पे सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब देख लो कि प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है? एम इज आर, हैव हैज. पास्ट का क्या है? वाज वेयर एंड हैड. जैसे कि एम इज आर क्या हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ऑक्सिलियरी वर्ब होता है. हैव हैज क्या होता है? परफेक्ट टेंस का. पास्ट टेंस में वही भी है, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस का. एंड हैड क्या है? इट विल रेफर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर वही है, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट में भी शैल एंड विल का इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो ऑक्सिलियरी वर्ब फ्यूचर का क्या है? शैल एंड विल. डू वर्ब क्या है? डू डज. ठीक है, ही डज नॉट कम टू द पार्टी, आई डू नॉट कम टू द पार्टी. उसको अब जो हम लोग इंटरोगेटिव करेंगे, डू आई कम टू द पार्टी, डज ही कम टू द पार्टी, ऐसे हो जाता है चीज़ें. और पास्ट में क्या है? डीड. डिस्कस करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. अब देखो जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग यहाँ तक जानते थे कि ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है, बी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है. लेकिन मार्जिनल ऑक्सिलियरी, इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करना या फिर सुन लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या है मार्जिनल ऑक्सिलियरी? हम लोग किसको बोलते हैं? डायरेक्ट समझो. ठीक है, घुमा फिरा के नहीं, सिर्फ डायरेक्ट समझो. यूज टू, नीड, डेयर, इसको मार्जिनल ऑक्सिलियरी बोलते हैं. ठीक है, दिमाग में घुसा लो किसको? यूज टू, नीड एंड डेयर, इसको हम मार्जिनल ऑक्सिलियरी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज दे कैन एक्ट बोथ एज मॉडल एज वेल एज मेन वर्ब. किसके साथ? मॉडल एंड मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है. क्लियर है? अब जब मॉडल की तरह यूज होगा तो जाहिर है कि इसके बाद V1 तो आना ही है. ठीक है, और क्या है? एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है. सिर्फ कौन एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है? यूज टू. एडजेक्टिव के चैप्टर जब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग करने लगेंगे तो और डिटेल तरीके से ये चीज़ों को समझ में आने लगेगा. ऑल दिस थिंग्स विल कम इन क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेशन टू यू. सो एडजेक्टिव सिर्फ यूज टू के लिए अप्लाइड है. रिमेंबर दैट. एडजेक्टिव इज अप्लाइड ओनली फॉर यूज टू, नॉट फॉर नीड एंड डेयर. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड यू. आई नीड यू. इन दिस सेंटेंस नीड इज main verb. Need is main verb. You need not come tomorrow. Need यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है. तो फिर मेन वर्ब कौन है? काम है यहाँ पे. ठीक है, ये क्या है? V1 है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब मतलब यहाँ पे मॉडल है. से क्यों? मार्जिनल ऑक्सिलियरी तो मॉडल एंड मेन वर्ब दोनों की तरह ही काम करेगा ना. फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में आई नीड यू, इट इज़ मेन वर्ब. नेक्स्ट में क्या है? यू नीड नॉट कम टुमारो. नीड हो गया क्या? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब. ठीक है, नीड क्या हो गया? मॉडल वर्ब. एंड काम क्या हो गया? मेन वर्ब, क्योंकि वो V1 फॉर्मेशन में है. ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो गया? ही डज नॉट डेयर टू कम. अब डज देखो क्या है? डज वो तो डू वर्ब था ना, तो डज नॉट डेयर. डेयर यहाँ पे क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया. ठीक है, ये यहाँ तक ये 3 सेंटेंस जो है, दिस 3 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग ओनली द बेसिक पार्ट. ठीक है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं? क्लियर ना? कैसे हम इसको यूज़ करते हैं? दिस 3 सेंटेंसेस आर डिस्कसिंग ओनली द बेसिक पार्ट. जैसे कि आई नीड यू, हियर नीड इज मेन वर्ब. यू नीड नॉट कम टुमारो, नीड हियर इज हेल्पिंग वर्ब, बट कम इज मेन वर्ब V1. डाज यहाँ पे क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब डू वर्ब है, जैसे कि बताया गया है यहाँ पे. एंड डेयर फिर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है?
Any doubt up to this? Okay. Now, अब इसको ध्यान से समझना है। तो इससे हम लोग कौन सा रूल निकाल पाएंगे इससे, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 1, 2 प्लस V1 मतलब क्या है ये, किसी को पता है 2 प्लस V1 क्या है? व्हाट इज 2 प्लस V1? इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। नो नो नो, नॉट बेयर इन्फिनेटिव, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, ठीक, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या हो जाता है? बेयर इन्फिनेटिव हम लोग V1 को बोलते हैं, बताते हैं। ओके, 2 प्लस V1 क्या है? इन्फिनेटिव, मतलब 2 के बाद हमेशा V1 यूज होगा, V2 का इस्तेमाल नहीं हो सकता, V3 का इस्तेमाल नहीं हो सकता, V4 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी। क्लियर है? आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी। यहां पर देखो क्या है, 2 है, इसके बाद क्या है? V1 हुआ है। आई वॉन्ट टू गोइंग हम लोग कभी बोलते हैं? आई वॉन्ट टू वेंट टू द पार्टी कभी बोलते हैं? नहीं ना। तो हमेशा क्या है? 2 के बाद हमेशा V1 आना है, आना ज़रूरी है V1। अब हमेशा मतलब हमेशा मत पकड़ते रहियो, हमेशा नहीं हो सकता है, एक ही एक्सेप्शन है, वो मैं बता दूंगा। तो इन 99% केसेस 2 के बाद V1 आता है, सिर्फ 1% केस है जहाँ पे 2 के बाद V1 नहीं V4 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और V1 प्लस ING का इस्तेमाल करते हैं। वो जब 2 क्या है? प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ होता है तब। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है? ING फॉर्म यूज़ होता है। सिर्फ सुन लो, ठीक है, कन्फ्यूजिंग लग सकता है चीज़ें, लेकिन दिमाग में इसको डाल लो, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा, और मैं क्लियर करवा के ही छोड़ूंगा। ओके, तो 2 प्लस V1 हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इन्फिनेटिव। और क्या बोला गया है? 2 प्लस V1 कैन कम आफ्टर नीड और डेयर व्हेन दे आर यूज्ड इन पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस जब यूज होगा, पॉजिटिव केस मतलब सेंटेंस का जो ट्यून है, टोन है और जो स्ट्रक्चर है, वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। वो क्या है? वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू वर्क हार्ड। अब देखो इसमें क्या है? यू नीड टू वर्क हार्ड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये करेक्ट है। यू नीड टू वर्क हार्ड, यहाँ पे नीड क्या है? मॉडल है, तो टू वर्क हार्ड वो इन्फिनेटिव आया है, को कर सकते हैं हम लोग, यू नीड टू वर्क हार्ड। अब देखो नॉट आ गया है, मतलब वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, पॉजिटिव सेंटेंस तो ये है नहीं। तो नीड नॉट टू वर्क हार्ड ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आने से ये सेंटेंस क्या नेगेटिव बन जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। when need and dare, when marginal auxiliary is used in a sentence, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, when not comes after need and dare it will be followed by bare infinitives, जो बोल रहे थे उस समय पे कि bare infinitives होगा सर। तो bare infinitives क्या है? bare infinitives है only V1, ठीक है। bare infinitives क्या है? only V1, note it down, we called only V1 as bare infinitives, only V1, ठीक है। तो यू कैन राइट रूल्स दैट इन ए नेगेटिव सेंटेंस, in a negative sentence, when the negative word within quotation like not comes after need or dare, 2 plus V1 will not be used, 2 plus V1 will not be used. I'm repeating, in negative sentence, when not, the negative word such as not comes after need or dare,
need or dare, to plus v1 or infinitive cannot be used. Rather, bare infinitives will be used. Rather, bare infinitives will be used. For example, ये सेंटेंस को देखो, he need not work hard. यहाँ पे क्या था? he need not to work hard. तो not आ गया, तो इसके बाद तो to infinitives का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मार्क है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? he need not work hard. क्लियर है? ओके, अब इसको करके बताओ, इसमें क्या एरर है? he dare not to go there. What will be the right answer of exercise 1? He dare not to go there. बताओ. She dare not to go there. Dare not go there. Everyone agrees with his view? Our first answer is he dare not go there. Very good. Because dare here is marginal auxiliary. तो यहाँ पे बताया गया था कि dare के बाद नेगेटिव वर्ड जब आएगा तो इन्फिनेटिव फॉर्म का नहीं लेगा, वो इस्तेमाल नहीं करेगा इन्फिनेटिव, रादर क्या यूज़ करेगा? बेयर इन्फिनेटिव. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं, सॉरी टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग. क्या करेंगे? ही डेयर नॉट गो देयर. ठीक है, ही डेयर नॉट गो देयर. सेकेंड का आंसर बताओ. हैरिस नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क. वेरी गुड. अब देखो, हैरिस तो वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हम किसको बोलते हैं? ही, शी और एनी काइंड ऑफ नेम्स. किसी का भी नेम हो, किसी भी सिंगुलर हो, सिंगुलर, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. नेम, ईट, ही, शी, इसको हम बोलेंगे क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. इसके साथ क्या होता है? मेन वर्ब का क्या होता है? एस और येस तो ऐड होता है. वी ऑल नो दैट कि वी ऐड एस और येस विद द मेन वर्ब व्हेनेवर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कम्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. बट हियर नीड इज मोडल ऑक्सिलियरी, इजंट इट? मोडल वर्ब. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, देखो मार्जिनल ऑक्सिलियरी क्या है? मोडल है. मोडल एंड मेन वर्ब दोनों के रूप में यूज़ होगा. तो नीड यहाँ पे मोडल है, तो उसके साथ तो नीड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग. वेरी गुड. तो आवर राइट आंसर इज नीड. इसका मतलब क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? हैरिस नीड नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क. क्लियर है? बोलो, दिक्कत यहां तक? Okay, so we are moving towards next slide. Used to. देखो इस्तेमाल कैसे करते हैं. यूज टू का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग जानकर आए हैं कि पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिनोट पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी वी यूज यूज्ड टू. ठीक, इन ऑर्डर टू डिनोट पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी वी यूज यूज टू. बट यूज टू को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करके, जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि मॉडल ऑक्सिलियरी में ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है ओनली इन केस ऑफ यूज टू. आई हैव टोल्ड यू. सो यहाँ पे हम लोग यूज टू को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे एंड वो सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्टिविटी को भी डिनोट कर सकता है. ठीक है, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्टिविटी को भी डिनोट कर सकता है. सो इन ऑर्डर टू डिनोट प्रेजेंट हैबिचुअल एक्टिविटी वी यूज बी वर्ब बिफोर यूज टू. जैसे कि मतलब यूज टू यहाँ पे यूज है, देखो इसके आगे बी वर्ब है, एंड आई एन जी फॉर्म विद द मेन वर्ब. मेन वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. आई एन जी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो V4 बन जाएगा. इन दैट केस यूज टू इज यूज एज एन एडजेक्टिव. यूज टू इज यूज एज एन एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव कैसे हुआ वो भी मैं बता दे रहा हूँ. तो फर्स्ट ये चीज़ देखो, द फर्स्ट इंस्टेंस इज
we use used to denote past habitual activity. For example, I used to roam around the park with my friend. कि पास्ट टाइम में मैं अपने फ्रेंड के साथ किसी भी जगह पे और किसी भी पार्क के आसपास या फिर पार्क में मैं घूमता था. तो ये सेंटेंस कैसे डिनोट किया? आई यूज टू रोम अराउंड द पार्क विथ माई फ्रेंड. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, कि मैं रोज सुबह देर करके उठता हूँ. ठीक है. तो आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग. तो यूज टू के आगे जब हम लोग बी वर्ब और किसी काइंड ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बी वर्ब और पॉजिटिव वर्ब. पॉजिटिव वर्ब क्या है मैं बाद में बताता हूँ. तो यू कैन राइट इट डाउन दैट बी वर्ब और पॉजिटिव वर्ब, यहाँ पे स्लैश देके लिख सकते हो. पॉजिटिव वर्ब स्पेलिंग होगा CAUSATIVE. बी वर्ब और पॉजिटिव वर्ब यूज टू के आगे हम लोग लगा के एंड मेन वर्ब के साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब और ING फॉर्म ऐड करके हम लोग प्रेजेंट हैबिचुअल एक्टिविटी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग. इन दैट केस ये एम जो है बी वर्ब और पॉजिटिव वर्ब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो लोग ये एम को हटा दे सकता है और किसको हटा दे सकता है? ING को हटा दे सकता है. ठीक है. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूज टू के बाद 2+V1 का यूज़ होता है, तो यहाँ पे रोमिंग का इस्तेमाल तो नहीं किए. ये भी सही है और ये भी सही है. लेकिन ये किस लिए सही हुआ? ये इसलिए सही हुआ कि यूज टू के पहले एक ऑक्सिलियरी और बी वर्ब और पॉजिटिव वर्ब ऐड हुआ है, इसलिए ING आया है. लेकिन आई यूज टू रोमिंग नहीं कर सकते हम लोग. क्लियर है? এই নোটসটাকেই লিখে নাও, এটাই তোমার নোটস, এটাকে তুমি স্ক্রিনশট নিতে পারো. In order to denote present habitual activity we use be verb or causative verb, be verb slash causative verb before used to and ING form with the main verb. In that case used to is used as an adjective. अब देखो एडजेक्टिव कैसे हैं. हाँ बोलो. একদমই তাই. এটা হচ্ছে তোমার ট্রান্সলেশনে. ইফ উই ওয়ান্ট টু ট্রান্সলেট ইট फ्रॉम आवर लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश वी कैन यूज़ इट इन दिस वे. और क्या हो सकता है? और एक चीज़ हो सकता है कि ऑक्सिलियरी वर्ब और पॉजिटिव वर्ब. अब देखो यहाँ पे अगर गॉट का इस्तेमाल कर दिए, आई गॉट यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, ये भी सही हो जाएगा. ये पास्ट में हैं, लेकिन गॉट क्या है? पॉजिटिव वर्ब है. वो बाद में आते हैं. ठीक है, वो समझा देंगे बाद में, अभी दिमाग से ऊपर से जाएगा नहीं. तो यहाँ तक समझ लो. बता दे रहा हूँ. यस, यूज टू यूज एज एन एडजेक्टिव. यूज टू का इस्तेमाल यहाँ पे देखो क्या है? एडजेक्टिव है. कैसे हैं? अब देखो गेटिंग अप, गेटिंग अप वर्ब के साथ ING लगा के हम लोग वर्बल नाउन कर देते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? जिरांड. वर्ब के साथ ING लगा के हम लोग वर्बल नाउन कर देते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन को जिरांड बोलते हैं. वो भी डिस्कस होगा. ठीक है. तो जिरांड नाउन के आगे हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. एडजेक्टिव कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसके साथ हमेशा नाउन का इस्तेमाल होना ही है. ठीक है. तो यहाँ पे गेटिंग नाउन बन गया, इसलिए यूज टू यहाँ पे एडजेक्टिव है. ठीक है. अब एडजेक्टिव अगर समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को, सर एडजेक्टिव का फिर यहाँ पे क्या यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है, बस समझाने के लिए बोल दिया. यूज टू यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है. इसलिए देखो यहाँ पे बोल्ड मार्क नहीं किया. नेसेसरी नहीं है कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल तुम्हें समझना ही है. समझ लो गेटिंग यहाँ पे क्या बन गया? जिरांड. इसलिए नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो इस यूज टू क्या बन गया? एडजेक्टिव. इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? ओनली 2 थिंग्स. वन इज दिस बी वर्ब और पॉजिटिव वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब, अनदर इज ING फॉर्म. ये एरर में देगा.
না 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 না, এম কি করে মেন ভার্ব হয়? স্ট্রাকচার দেখো, অক্সিলিয়ারি ভার্ব। হ্যাঁ, না, এম এর ওপর বেস করে বি ভার্ব অর অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইউজ টুর আগে অ্যাড হয়েছে, তাই আমি আইএনজি অ্যাড করতে পারছি। এখানে দেখো নেই, তাই তো, তাই আমি V1 অ্যাড করেছি, V4 করিনি। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? দুটোকে কম্পেয়ার করো, কম্পেয়ার দিস টু সেন্টেন্সেস। ইন দিস কেস ऑक्सिलियरी वर्ब और बी वर्ब इज नॉट यूज्ड, दैट्स वाई 2 + V1 इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। यूज टू रोम अराउंड, यूज टू पिकअप, यूज टू प्ले, यूज टू प्लेइंग का इस्तेमाल नहीं किए। यूज टू प्लेइंग कब कर सकते हैं? जब बोलेंगे आई एम यूज टू प्लेइंग इन दिस गार्डन। ठीक है, एम इस्तेमाल हुआ, और ही इज यूज टू प्लेइंग इन दिस फील्ड, इज का इस्तेमाल हुआ तो फिर प्लेइंग हुआ। क्लियर? क्लियर है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, एरर कहाँ पे? वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो क्या है, इंटेरोगेटिव में है, तो इसको अगर स्टेटमेंट करेंगे तो फिर क्या है, यू आर यूज टू गेटिंग अप अर्ली। उसी को ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले देके हम लोग इंटेरोगेटिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया, मतलब आर आया, तो ये इंटेरोगेटिव बन गया। लेकिन स्ट्रक्चर तो वही है ना, कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ये स्ट्रक्चर भी लिख लो तो, एक सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब, AUX लिख दिए, प्लस यूज टू प्लस V4 और V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हो गया स्ट्रक्चर तुम्हारा। ठीक है? हम्म हम्म ना ना ना, নো ইউজ, না না, যা ইউজ আছে সব দেখাবো আমি এখন, যেটা নেই সেটা তো মেনশন হবে না, মনে রাখবে। ঠিক? ওকে। আর ইউ ইউজ টু গেটিং আপ, সো আওয়ার আনসার উইল बी गेटिंग अप। स्ट्रक्चर बता दिए क्या, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ING और V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट। ओके, so error lies in the second part, getting up. Clear? Okay, next. देखो, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। हाँ, इतना कुछ है भी नहीं इसमें, सिर्फ समझ लो क्या है, कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, बस बेसिक्स। तो इन केस ऑफ एडवांस, यहाँ तक बेसिक हो रहा था, यहाँ तक क्या हो रहा था, बेसिक का डिस्कस हुआ। अब देखो वर्ब एडवांस में जाके हम लोग इसको 4 और टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द एंटायर स्ट्रक्चर और एडवांस सेक्शन ऑफ वर्ब इन 4 अदर डिफरेंट सेक्शंस, लाइक फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? तो फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, दैट गेट्स चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर, टेंस एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, ही लाइक्स वॉचिंग मूवी। देखो लाइक्स यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो फिर क्या हो गया लाइक्स। यहाँ पे अगर यू रहता, तो यहाँ पे अगर यू रहता, सेकेंड पर्सन अगर रहता, तो फिर क्या हो जाता वो, यू लाइक वॉचिंग मूवी, इजंट इट? वी विल यूज यू लाइक वॉचिंग मूवी, क्योंकि यू इज थर्ड पर्सन, ये सॉरी, यू इज नॉट एट ऑल थर्ड पर्सन, यू इज सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन के साथ हम लोग वर्ब का एस और यस इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या हो जाता, यू लाइक वॉचिंग मूवी। अब इसको हम लोग अगर पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यू लाइक, ही लाइक्ड वॉचिंग मूवी, और यू लाइक्ड वॉचिंग मूवी, आई लाइक्ड वॉचिंग मूवी। मतलब क्या है, तो नंबर, टेंस, पर्सन के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, इसलिए लाइक यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट क्या है, जो कि चेंज होता नहीं है, जो कि चेंज होता नहीं है, दैट डज नॉट गेट चेंज एट ऑल। एग्जाम्पल, आई लाइक वॉचिंग मूवी, उसी को उठा के यहाँ पे दे दिए, आई लाइक वॉचिंग मूवी। वॉचिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट।
देख सकते हो एग्जाम्पल, ही लाइक्स वॉचिंग मूवी, यहाँ पे देखो वॉचिंग क्या है, चेंज नहीं हुआ है। ही लाइक्ड वॉचिंग मूवी, यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हम लोग जीरांड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जीरांड भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन फाइनाइट का ही पार्ट है जीरांड, उस पे भी आते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो डिस्कस कर ही लेते हैं एक बार। तो नॉन फाइनाइट के केस में क्या है, 3 और वर्ब्स है, वो क्या है, इन्फिनेटिव है। वो कि सीख चुके हैं हम लोग, इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, 2 + V1। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो, गो यहाँ पे क्या है, V1 है, ठीक है, गो हियर इज V1, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गो टू द ओकेशन। जिरांड क्या है, V1 + ING, इसको बोलते हैं, इसी को ही बोल रहे थे जिरांड, कि वर्बल नाउन बोलते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि इसको एक बार वर्ब और एक बार नाउन के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग। आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, यहाँ पे वॉचिंग क्या है, जिरांड है, वर्बल नाउन है ये, ठीक है, वॉचिंग टेलीविजन। और ये क्या है, एक है पार्टिसिपल। सिर्फ इसको देख लो क्या डिफरेंस है, उतना भी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ देख लो, जितना ज़रूरत है मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग कितने तरीके में डिवाइड किए, वी हैव डिवाइडेड द एंटायर सेक्शंस इनटू 3 अदर सेक्शंस विच इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, जीरांड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव 2 + V1, जीरांड V1 + ING, पार्टिसिपल V1 + ING, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, V3। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है यहाँ पे, हैविंग + V3। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर एग्जाम्पल देता हूँ कि हियरिंग द नॉइज वी रश टू द प्लेस। अब डिफरेंस अगर समझने की कोशिश करो तो फिर पार्टिसिपल क्या है, वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, जिरांड को बोलते हैं क्या, वर्बल नाउन। सिर्फ देख लो और किसको क्या बोलते हैं वो जान लो। डिफरेंस ये बोल सकते हो कि इसमें देखो एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, ठीक है। हियरिंग द नॉइज वी रश टू द प्लेस, कि कुछ हुआ इसलिए कुछ घटना घटी, ठीक है। तो हियरिंग द नॉइज वी रश टू द प्लेस, लेकिन इसमें कुछ कॉज एंड इफेक्ट का कुछ ऐसा खास इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि आई लाइक स्विमिंग, ठीक, आई लाइक ड्राइविंग, वो भी जिरांड का ही है फॉर्मेशन। पास्ट पार्टिसिपल क्या है हम लोग जानते हैं, V3, कि ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। ड्राइव क्या है, V1, ड्राइव। V2 क्या है, ड्रोव, DROVE, ड्रोव। एंड V3 क्या है, ड्रिवन। तो इसी से हम लोग सेंटेंस को प्रिपेयर करेंगे, ड्रिवन से। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, ये V3 का इस्तेमाल हुआ पास्ट पार्टिसिपल का। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग + V3, कि हमेशा वो हैविंग के बाद ही V3 आएगा। ये हैविंग जैसे इस्तेमाल होता है, जैसे कि हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। तो हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या क्या हुआ, इन्फिनेटिव 2 + V1, जिरांड क्या है, वर्बल नाउन, एंड पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ING, पास्ट पार्टिसिपल V3, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग + V3, हैविंग + V3, ठीक है। और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा कुछ खास है नहीं, जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बॉक्स। मतलब क्या है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, मतलब ही का जो एक्शन है वो डायरेक्ट बॉक्स में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ही कैन प्ले क्रिकेट, अगर बोलेंगे कि ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्ले क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ही का जो एक्शन है वो क्रिकेट में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, लिफ्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ही क्राइज, उसके बाद कुछ है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दे आर लाफिंग, किस लिए, ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो लाफिंग क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्राइज क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, ठीक है। लाफिंग क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का उतना यूज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, उतना नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा,
क्योंकि इतना इजी सेक्शन बैंकिंग सेक्शन में तो आता नहीं है। दिक्कत वाला क्या है, दिक्कत जो देता है वो क्या है, वो इन्फिनिटिव को लेके जो एक्सेप्शन है वो, एंड हैविंग प्लस V3 को लेके कुछ कुछ रूल्स है, एंड V3 पास पार्टिसिपल को लेके भी कुछ कुछ रूल्स है, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है। ठीक है, तो क्विकली एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कैसे डिवाइड हुआ है वो। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, ठीक है, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, क्या है कि इलनेस की वजह से मैं आ नहीं पाया। ये क्या है, पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, ये भी एक एग्जाम्पल है पार्टिसिपल का, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। नेक्स्ट क्या है, वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, ये भी एक एग्जाम्पल है पास्ट पार्टिसिपल, ये सॉरी पार्टिसिपल का। अब देखो, ये तीनों सेंटेंस वैसे हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं, कॉलिक्वल लैंग्वेज में यूज़ करते हुए, यूज़ दिस इन कॉलिक्वल लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग टू आवर फ्रेंड्स, वाइल स्पीकिंग टू आवर टीचर्स, वी यूज़ दिस। बट अगर गौर से देखा जाए तो इसमें एरर है, ठीक है, इसमें एरर है। देखो, पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, वो रूल है, कि इसलिए हम लोग उसको एरर मानते हैं, क्यों है। मैं से पूरे जो चीज़ है इसको समाप्त कर देता हूँ, आई एम समिंग इट अप। ओके, look at these three sentences very carefully. Being ill, I could not come. Next, being a rainy day, I could not come. Next, walking along the road, my pen fell down. If we look at this sentence very carefully or intensely, we can see that the sentences are divided in two parts. देखो, ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड है, दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, कॉमा को देके ऐसे ऐसे देखो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो इन दिस सेंटेंसेस वी हैव टू टेक अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एज अ कॉमन सब्जेक्ट ऑफ बोथ द पार्ट। जैसे कि बीइंग इल आई कुड नॉट कम टू द पार्टी, और कुछ भी हो, आई कुड नॉट कम, आई यहाँ पे क्या है, इन दिस केस आई इज अ कॉमन सब्जेक्ट, we will take I as common subject of both this part. अब कॉमन सब्जेक्ट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि रिलेवेंट रिलेशनशिप किसके साथ आ रहा है, सेंटेंस के साथ आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आया वो सेंटेंस गलत है, अगर आ गया तो सेंटेंस सही है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, आई यहाँ पे क्या है, जैसे कि मेंशन किया गया है, आई बीइंग द कॉमन सब्जेक्ट ऑफ बोथ द पार्ट प्रोवाइडिंग अ रिलीवेंट मीनिंग टू द सेंटेंस। कैसे मीनिंग दे रहा है कि बीइंग इल आई कुड नॉट कम, आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है, कौन नहीं आ पाया, मैं, आई कुड नॉट कम। अब आई को यहाँ पे बिठा दो, आई बीइंग इल मतलब तबीयत खराब किसका था, मेरा था। आई बीइंग इल, तबीयत खराब किसका था, मेरा था। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है क्वेश्चन करके, तबीयत खराब किसका था, हु वॉज इल दैट टाइम, आई और मी, एंड हु कुड नॉट अटेंड द पार्टी, इट वॉज ऑल्सो आई, मैंने अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए वो सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। सेकेंड में जाओ, आई यहाँ पे क्या है, अगेन आई जो है वो क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है, आई कॉमन सब्जेक्ट डू नॉट प्रोवाइड रिलेवेंट मीनिंग टू द सेंटेंस। अब देखो, आई बीइंग रेनी डे, मैं बारिश बन गया, नहीं ना, मैं तो बरसात का दिन नहीं बन सकता, मैं पहुंच नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रहा था। इसलिए यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट का खामियां हैं, किसी भी एक राइट सब्जेक्ट का खामियां हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, इट बीइंग रेनी डे आई कुड नॉट कम। ये एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बैंकिंग में भी आ चुका है, ये सेंटेंस नहीं,
ऐसे सेंटेंस, एसएससी में तो इसको उठा के पूछते हैं, एंड पीएससी वगैरह को छोड़ ही दो, उसमें तो पूछता ही है। तो क्यों इट बीइंग रेनी डे हुआ, इसके वजह से हम लोग आंसर को मेमोराइज करके जाते थे पहले एग्जाम सेंटर में, अब सीख के जाएंगे ताकि ये सेंटेंस को अगर घुमा के पेश किया जाए तब भी ये सेंटेंस गलत ना हो। किस लिए है? दिस काइंड ऑफ सेंटेंस कंटेन टू पार्ट्स। वी विल हैव टू टेक अ सब्जेक्ट as the common subject of both the part. I here is the common subject of both the part. If we put I before being, I being rainy day, it is not providing any relevant relationship to the sentence, isn't it? So that's why क्या हो जाएगा? I could not come, ये सही है कि कौन नहीं आ पाया, मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं रेनी डे हूँ, ये तो रिलेवेंट सेंटेंस नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? इट बीइंग रेनी डे आई कुड नॉट कम। क्लियर है? करेक्ट। इट बीइंग रेनी डे आई कुड नॉट कम। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। देखो जो भी है सब इंपॉर्टेंट है, आसान तरीके से समझा दे रहा है, आसान तरीके से समझो, कॉम्प्लिकेट मत करना, इसको एकदम कॉम्प्लिकेट मत करना। ओके, थर्ड सेंटेंस में क्या है? देखो, वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन। को क्या गिर गया? माई पेन फेल डाउन, यहाँ तक तो सही है। माई पेन यहाँ पे क्या है? कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसको बिठाते हैं। माई पेन वॉकिंग अलोंग द रोड, पेन चल रहा था, नहीं ना, मीनिंग तो नहीं दे रहा है, तो कोई रिलेवेंट रिलेशनशिप और रिलेवेंसी तो नहीं दिखा रहा है, तो ये सेंटेंस भी देयरफॉर रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, सब्जेक्ट ऐड कर दिए। While I was walking along the road, my pen fell down. ये हो जाएगा करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है while walking while walking along the road my pen fell down, the same confusion will arise. Suppose ধরো I was টাকে তুমি কেটেছো, while walking along the road my pen fell down, in this case my pen becomes common subject, तो my pen কে তুমি যদি এখানে বসাও আসছে কি आंसर? ठीक, तो सब्जेक्ट होना जरूरी है, एक रेलिवेंट सब्जेक्ट होना जरूरी है जिसको हम लोग बिठाएंगे। ठीक है, ओके, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। वाई? आई बिकम्स कॉमन सब्जेक्ट हियर, आई कुड नॉट कम, कौन नहीं आ पाया, के আসতে পারেনি, আমি, मैंने। आई के যদি সামনে বসাই, आई बीइंग इल, शरीर खराब कार छिलो, किसका तबीयत खराब था? मेरा, तो आई तो आंसर दे रहा है ना, आई तो आंसर दे रहा है कि आई बीइंग इल आई कुड नॉट कम, आई का तो आंसर मिल रहा है, तबीयत खराब किसका था? मेरा था, तो आई को हम लोग कॉमन सब्जेक्ट मान के वो रिलीवेंट रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। वो रिलीवेंसी दिखा रहा है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट इसका एक ही है, जिसका तबीयत खराब हुआ वो भी एक ही पर्सन है, जो अटेंड नहीं कर पाए वो भी वो आई ही है, वो एक ही पर्सन है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, लेकिन बताओ কোনটা কোনটা? না না না, অন্যভাবে দেখবো না, ওই জন্যই বললাম। দেখো, অন্যভাবে দেখবো না এই সেন্টেন্সগুলোকে। হ্যাঁ, কেন দেখবো না? এই সেন্টেন্সগুলোকে যেটা বললাম, যখন এই সেন্টেন্সগুলো আসবে দুটো পার্টে থাকবে, আমি যে সাবজেক্ট আমার সেন্টেন্সে থাকবে, ঠিক, শুধু সেটাকে দিয়ে আমি কোশ্চেন করে দেখব যে আমি আনসার পাচ্ছি নাকি। যদি আনসার পেয়ে যাই তাহলে আমার সেন্টেন্স রাইট, না পেলে রং। বোঝা গেল? সে অন্য কেউ হতে পারে, যদি তোমাকে বলতে পারতো কি বিইং ইল হি কুড নট কাম, ঠিক, এটা হতে পারতো যে তার শরীর অসুস্থতার জন্য সে আসতে পারেনি, কিন্তু আমার শরীর অসুস্থতার জন্য আই বিইং ইল হি কুড নট কাম, এটাও দেখো সেন্টেন্স তোমার সহি হচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে তুমি কি আনসার পাচ্ছ কি না। যে যে সাবজেক্ট আছে
তাকে দিয়ে তুমি আনসার পাচ্ছ কি না, যদি না পাও তাহলে ভুল, যদি পাও তাহলে ঠিক। সে কে হতে পারতো, অন্য কেউ তো হতে পারতো, অবশ্যই হতে পারতো, হয়তো হতে পারতো, তাহলে আমরা সেন্টেন্সটাকে অন্যভাবে লিখতাম। কিন্তু যেটা আছে সেটা দিয়ে কি আমি আনসার পাচ্ছি? যদি পাই তাহলে আনসার ঠিক। ক্লিয়ার? হুম হুম হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আই বিইং ইল আই কুড নট কাম, হ্যাঁ এটাও তুমি করতে পারো। বাট এই সেন্টেন্সে তুমি আনসার পাচ্ছ, তো বিইং ইল আই কুড নট কাম এই সেন্টেন্সটা ঠিক আছে। তুমি দুটো সাবজেক্ট ধরো, তুমি কি একই সেন্টেন্সে তুমি লেখো কি বারবার করে দুটো সাবজেক্ট, মানে একই প্রোনাউন কি তুমি ইউজ করো? হি ইজ ইল কমা হি ইজ নট কামিং, এভাবে তো বলতে পারো না। বলতে পারো কি সমিত ইজ ইল ফুল স্টপ, হি ইজ নট কামিং টু দ্য পার্টি ফর হিজ ইলনেস। সমিতের জন্য তুমি হি কে ইউজ করেছো, বোঝা গেল? দুবার কিন্তু একই সেন্টেন্সে তুমি হি ইউজ করতে পারো না। ক্লিয়ার? ওকে। না না, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তুমি, তোমার সুবিধা মতো তুমি পরে নোট ডাউন করে নিও। হুম। দ্য এন্টায়ার, হ্যাঁ বলো। হুম, বিকজ অফ বিইং ইল আই কুড নট কাম, হ্যাঁ হতেই পারে, সেটাও হবে। আমার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সহি হওয়া নিয়ে কথা। এবার তুমি যদি লেখো বিকজ অফ যদি তুমি লেখো, তাও দেখবে তুমি আনসার পাচ্ছ। বিকজ অফ বিইং ইল আই কুড নট কাম, আই তো হয়ে গেল তোমার কমন সাবজেক্ট। তাহলে শরীর খারাপ কার ছিল? আমার ছিল। হ্যাঁ, একদমই তাই। আনসার তুমি কোশ্চেন করে যদি সাবজেক্টের রেলিভেন্সি খুঁজে পাও, ইওর আনসার উইল বি রাইট, যদি না পাও রং। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। ওকে, এটা টোটালটা স্ক্রিনশট তুলবে। দেখ, এটাকে বোঝানোর তেমন কিচ্ছু নেই। আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট টু প্লাস ভি ওয়ান, তাই তো? টু প্লাস ভি ওয়ান আমরা ইনফিনিটিভে ইউজ করি। In case of infinitive, we use 2 plus v1 always, 99% cases. But only 1% is there when 2 is used as a preposition. When 2 is used as preposition. এবার যখন প্রিপোজিশন হিসেবে ইউজ হচ্ছে, when 2 is used as preposition, we have to use v1 plus ing। क्यों? क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद v1 plus ing यूज होता है। ठीक है, वो जब प्रिपोजिशन का क्लास होगा उस समय में और डिटेल तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सिर्फ ये जान लो कि सिर्फ 1% है जब टू के बाद v1 प्लस आई का इस्तेमाल होता है। वो परसेंट क्या है? 1% इसके वजह से है कि दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन सर्टेन फ्रेजेस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। ये कुछ फ्रेज है, उसके बाद ही v1 प्लस आई का इस्तेमाल होगा। वो फ्रेज क्या है? एक फ्रेज तो तुम लोग सीख चुके हो कि ऑक्सिलियरी वर्ब और बी वर्ब और कॉजेटिव वर्ब प्लस यूज टू प्लस v1 प्लस आई यहाँ पे यूज टू एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ही गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंडन। ठीक है, अब देखो वो क्या है, उस समय पे बता रहे थे कि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए। अब देखो, पास्ट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लेकिन पास्ट तभी यूज करेंगे कि कुछ हैबिचुअल एक्टिविटी हो, लेकिन जब यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब और कॉजेटिव वर्ब है तब यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट का करने के लिए क्या है? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्टिविटी डिनोट करने के लिए प्रेजेंट केस में ऑक्सिलियरी वर्ब जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एम, इज, आर, गेट। ठीक है, गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट वो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्टिविटी को डिनोट करेगा। एंड अगर हमें आईएनजी का इस्तेमाल करना ही है पास्ट में जाके, तो फिर पास्ट ऑक्सिलियरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट, ये भी कर सकते हैं। आई गॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर फ्यूचर का कोई ऑक्सिलियरी वर्ब यूज कर सकते हैं? नहीं, शैल विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है?
ये भी कर सकते हैं इसको कि आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट साइड व्हेन आई वॉज इन लंडन, ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन जब भी ड्राइविंग का इस्तेमाल करना है तो फिर एक ऑक्सिलियरी वर्ब और एक कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना ही है। गॉट यहाँ पे क्या है कॉजेटिव वर्ब में, मैं उसको बाद में आता हूँ कॉजेटिव वर्ब क्या है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में पता चल गया कि बी वर्ब और पॉजिटिव वर्ब प्लस यूज टू, इसके बाद V1 प्लस ING का इस्तेमाल होता है। accustomed to with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, taken to, prone to, ये जो है सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। इसके अलावा भी बहुत वर्ब है जैसे कि एवर्ड्स टू, गिव टू, ये भी सारे हैं, वो एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मेंशन नहीं किए। यहाँ तक कर लो यही काफ़ी है। फॉर एग्जाम हाँ ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आगे छिलो एडिक्टेड একদমই ओके। सो एडिक्टेड टू यहाँ पे हैं तो इसलिए क्या हो गया V1 प्लस ING। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू है तो मीटिंग हो गया। ठीक है, और इसका इस्तेमाल तो तुम लोग पहले से ही सीख चुके हो। अब देखो मॉडल के रूप में V1 आना है किसके बाद यूज टू। जब बोलेंगे जैसे कि इस सेंटेंस में था कि आई यूज टू रोम अराउंड द पार्क विथ माई फ्रेंड, यूज टू यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग मॉडल के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलियरी। क्यों मॉडल, तो उसके बाद क्या लेता है V1 लेता है ना, तो रोम तो यहाँ पे क्या है V1 है, तो इसलिए इसको मेंशन किया गया है और कुछ नहीं। आई ওয়াজ ইউজ টু রোমিং, হ্যাঁ অফকোর্স বল सकते हैं। এখানে তুমি যদি বলতে চাও যে স্যার আমি ওই পাস্ট হ্যাবিচুয়াল অ্যাক্টিভিটি যেটা আছে আমি ওখানে মডাল হিসেবে ইউজ করব না, আমি ওকে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করব, তো তুমি করে দাও। অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে যখন ইউজ করবে তার মানে তোমার রোমিং করতে হবে, এখানে তার আগে কি করতে হবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আর বি ভার্ব লাগাতে হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট দেখো এই যে পজিটিভ ভার্ব বলছিলাম, কেন পজিটিভ ভার্ব, কি পজিটিভ ভার্ব, কেন পজিটিভ ভার্ব বলে, হোয়াই উই সে দিস, হোয়াই উই মেনশন পজিটিভ ভার্ব, দরকার নেই, দেয়ার ইজ নো নিড অফ নোয়িং হোয়াই দিস ইজ কল্ড পজিটিভ ভার্ব, ओनली नो दैट व्हाट इज पॉजिटिव वर्ब, हैव गेट एंड मेक आर कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब। और इसके बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है वो देख लो। हैव के बाद किसका यूज़ होगा V3 का, जानते हैं हम लोग, क्योंकि परफेक्ट टेंस में आई हैव डन दिस जॉब, ही हैड डन दिस वर्क, तो हैव के बाद V3 का इस्तेमाल होना है। गेट के बाद क्या है, गेट ये भी एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद V3 का इस्तेमाल होता है। एंड मेक के बाद क्या है V1 का इस्तेमाल होगा, मेक के बाद क्या है V1 का इस्तेमाल होगा। V1 मतलब V1, ओनली V1, कोई इन्फिनेटिव और मॉडल फॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, V1 मतलब क्या है ओनली V1। ठीक है, टू गो, टू रीड, ये सारे चीज़ नहीं अलाउड है। ओनली V1 मतलब गो, रीड, प्ले, ईट, ड्रिंक, बस यहाँ तक। ठीक है, ओनली V1। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखो एक चीज़ बोल देते हैं कि ये कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक क्या है आई एम रीडिंग दिस टॉपिक, तुम किसी टॉपिक को रीड कर रहे हो, आई एम रीडिंग दिस टॉपिक, ठीक, मैं इस टॉपिक को रीड कर रहा हूँ। अब सपोज मैं खुद को ही पकड़ लो कि मैं योर टीचर, मतलब आई एम बीइंग योर टीचर, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक, तो फिर क्या हो जाएगा आई एम मेकिंग यू रीड। ठीक है,
आई एम, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा कि आई एम मेकिंग यू रीड, आई एम मेकिंग यू रीड द टॉपिक, ठीक है, आई एम मेकिंग यू रीड द टॉपिक, इसको इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वन है, क्योंकि तुम उसको पढ़ रहे हो और मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू है, ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, वो सब्जेक्ट टू है कि मैं तुमको हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो। ऐसे सेंटेंस में हम लोग पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि सपोज तुम्हारे मम्मी तुमको खिला रही है, कि उसको ऐसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में कि माई मॉम मेकिंग मी ड्रिंक दिस फ्रूट जूस, माई मॉम मेकिंग मी ड्रिंक दिस फ्रूट जूस, मतलब तुम्हारे मम्मी तुमको खिला रही है वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, मी यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट, माई मम्मी और माई मादर हो जाएगा क्या, ये सॉरी मी हो जाएगा क्या, तुम वो चीज़ पी रही हो और पी रहे हो, तो वो हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट वन, तुम्हारे मम्मी क्या है, सब्जेक्ट टू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लो, क्लियर हो जाएगा। आई मेड हिम डू द होल वर्क, मेड यहाँ पे क्या है, मेक का ही तो V2 है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मेक क्या है, V1 है, मेड हो गया V2, ठीक है, ये सब जानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आई मेड हिम डू द होल वर्क। तो मेड हुआ तो फिर क्या है, लेकिन V1 तो होना ज़रूरी है क्योंकि वो V1 लेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू यहाँ पे क्या है, कोई डू वर्ब नहीं है, डू यहाँ पे क्या है, V1 है, मतलब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। डू ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। डू यहाँ पे क्या है, करना, कुछ वर्क कर रहे हैं उसको बोले डिनोट कर रहे हैं डू से, तो आई मेड हिम डू द होल वर्क, ठीक है। तो मेड के साथ V1, वी गेट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस, यहाँ पे देखो कौन हेल्प किए, हम लोग, हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस, कौन अरेस्ट किए, पुलिस अरेस्ट किए, वर्क कौन किए, पुलिस, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ये, और वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू, ठीक है। पुलिस का हेल्प लिए तो पुलिस काम किए, तो फिर हो जाएगा वो सब्जेक्ट वन, वी हो जाएगा सब्जेक्ट टू। यहाँ पे वो सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू इसका कोई इतना फंडा नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि मेड के बाद V1 यूज़ होता है, गेट के बाद V3 का इस्तेमाल यूज़ होगा, हैव के बाद V3 का इस्तेमाल यूज़ होगा, ठीक है। मेक वर्क, वी हैव टू वर्क द सिस्टम, वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क। तो हैव टू हैज़ टू का सिस्टम, हम हैव टू हैज़ टू कहाँ पे यूज़ होता है, बाउंडेशन के लिए, ठीक है, मुझे करना ही है, मुझे जाना ही है, आई हैव टू गो टू द पार्टी, ऐसे जब सेंस है तो हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक यहाँ पे आया पॉजिटिव वर्ब के रूप में, इसके बाद क्या है, V1 का इस्तेमाल हुआ। सिर्फ यहाँ तक समझ लो कि हैव के बाद V3, गेट के बाद V3, मेक के बाद V1। बोलो दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट, ओके, इसको समझ लो, फिर बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो रूल्स रिलेटेड टू मॉडल ऑक्सिलियरी एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसको लिखा रहे हैं, और भी सारे जो है वो हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है, कि मॉडल के बाद V1 के इस्तेमाल होगा। आई कैन गो टू द पार्टी, ही कैन लीव द बॉक्स, ये क्या है, एक्सेप्शन है, इसलिए इसको स्ट्रेस देती है। क्या है एक्सेप्शन, कुछ भी नहीं है, इसको भी हम लोग जानते हैं लेकिन ऐसे डिटेल में डिस्कस नहीं किए। देखो मॉडल क्या है कि मॉडल हैव प्लस V3, ठीक है, आई शुड हैव डन दिस, आई कुड हैव गॉन देयर, आई माइट हैव प्लेड द मैच, ऐसे अगर सेंटेंस में यूज़ होता है चीज़ें तो वो सेंटेंस का दो मीनिंग रहता है। मतलब व्हेन सम मॉडल्स आर यूज्ड इन फॉर्मूला लाइक मॉडल हैव प्लस V3, लाइक शुड हैव काम, कुड हैव काम, काम यहाँ पे क्या है, V3 है, ठीक है, काम केम काम, याद रखना V1 है काम,
केम क्या है V2, काम हो गया फिर से V3, ठीक है, तो इसको V1 मत पकड़ना, हैव के बाद हमेशा V3 का इस्तेमाल होता है। तो देयर इज ए हिडन मीनिंग, क्या मीनिंग रहता है, विच इज ऑपोजिट टू द मीनिंग। अब देखो आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, यहाँ पे क्या है, कुड एक क्या है, मॉडल वर्ब है, इसके बाद V1 आया, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, इसका मतलब क्या है कि आई हैड द एबिलिटी। कुड क्या है, एबिलिटी को डिनोट करता है कि मैं एग्जाम में गुड स्कोर कर सकता था, आई हैड द एबिलिटी, मैं कि एग्जाम में गुड स्कोर कर सकता था। और आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स का मतलब क्या है, आई डिड नॉट स्कोर ऑल्दो आई हैड द एबिलिटी, कि मुझ में एबिलिटी होने के बावजूद मैं गुड मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, इसका मतलब क्या है, ये समझ लो कि आई might have played the match, I might have played the match, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं खेलने के लिए सक्षम था, मैं खेल पाता था, लेकिन मैंने नहीं खेले वो मैच, काश मैं खेल लेता। आई माइट हैव प्लेड द मैच, इसका मतलब क्या है कि मैं वो मैच नहीं खेले, ऑल्दो आई हैड द एबिलिटी, मुझ में वो काबिलियत था, फिर भी मैं एक्सक्यूज दे के वो मैच नहीं खेले, ठीक है, क्लियर है। और ये चीज़ मतलब मॉडल प्लस हैव प्लस V3 किसके साथ अप्लाइड नहीं है, विल हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 एंड माइट हैव प्लस V3 इसके साथ अलाउड नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग नोट डाउन कर भी सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक जनरल रूल है, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ हो रहा है। वुड हैव V3, माइट हैव V3 वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे बैंकिंग के एग्ज़ाम में उतना पूछता नहीं है, लेकिन SSC के एग्ज़ाम में ये रूल्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो कि बैकडेटेड रूल्स है उसको लेके क्वेश्चन बनाते हैं। तो विल वुड माइट के साथ हैव प्लस V3 का इस्तेमाल नहीं होगा, वो SSC के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बैंकिंग के लिए सिर्फ जान लो कि इसका यूज़ है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सब यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, कि मेरे अंदर काबिलियत होने के बावजूद मैं इसको नहीं कि मैं गुड मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। तो ये अगर समझ चुके हो तो इसको बताओ एरर कहाँ पे है। हैड बीन হবে না কেন, हैड কেন আসবে, মডেল তো হ্যাড তো হবেই না, তো V1 তো হ্যাভ আসতে হবে। এনিওয়ান এলস, ओके। when you had been young, तो जब तुम यंग थे, यू ऑट टू लर्न गुड हैबिट्स, ये ऑट टू क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी है, ठीक है, ऑट टू मॉडल ऑक्सिलियरी, ये मास्ट सेंस में यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू हैड बीन यंग, जब तुम यंग थे उस समय तुम्हें गुड हैबिट्स एक्वायर कर लेना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किए, तो फिर क्या हो जाएगा, यू ऑट टू हैव लर्नड, LEARNT, यू ऑट टू हैव लर्नड मतलब क्या है, 1 2 3 थर्ड पार्ट में एरर है। कहाँ पे है, थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पे एरर है। क्या होना चाहिए था, यू ऑट टू हैव लर्नड, तुम्हें गुड हैबिट्स सीखना चाहिए था मगर तुमने नहीं सीखे, इसका मतलब ये दर, ठीक है, ये आया कि वो यू ऑट टू हैव लर्न गुड हैबिट्स, मतलब तुम्हें गुड हैबिट्स सीखना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं सीखे।
सो एरर क्या है, थर्ड पार्ट में है, व्हेन यू हैड बीन यंग यू ऑट टू हैव लर्नड गुड हैबिट्स। क्लियर है? ओके हाँ ओके बिल्कुल। व्हेन यू हैड बीन यंग यू ऑट टू हैव लर्नड, যেটা বললাম দেখো কি বললাম, মোডাল প্লাস হ্যাভ প্লাস ভি3 কখন ইউজ হয়, শুড হ্যাভ ক্যাম কুড হ্যাভ ক্যাম, যখনই আসবে কি মনে রাখবে একটা হিডেন মিনিং থাকবে। তো আই কুড হ্যাভ স্কোর্ড গুড মার্কস, এখানে একটা মিনিংটা কি ছিল, হিয়ার দ্য মিনিং লাইজ দ্যাট आई हैड द एबिलिटी बट आई कुडंट स्कोर गुड मार्क्स। ठीक, आई माइट हैव प्लेड द मैच, मतलब क्या है, मेरे अंदर खेलने का क्षमता था, আমি খেলতে পারতাম কিন্তু তা সত্ত্বেও খেলিনি, আমি এক্সকিউজ দেখিয়ে খেলিনি, বাট আমার খেলাটা উচিত ছিল। এইটা যখন বলছি সেটাকে আমি কিভাবে এক্সপ্রেস করছি, আই মাইট হ্যাভ প্লেড দ্য ম্যাচ। এখানে কি হোয়েন ইউ হ্যাড বিন ইয়াং মানে কি যখন তুমি ইয়াং ছিলে, ইউ অট टू लर्न गुड हैबिट्स, कि बोलते हैं तुम्हार गुड हैबिट्स सीखा उचित छिलो, तुम्हें गुड हैबिट्स सीखना चाहिए था। मतलब क्या है इसका, मतलब ये हुआ ना कि वो नहीं सीखे, वो गुड हैबिट्स नहीं सीखे, इसलिए हिडन मीनिंग का सेंस आ रहा है यहाँ पे कि जब तुम यंग थे तब गुड हैबिट्स नहीं सीखे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये मोडल प्लस हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है कहाँ पे कि यू ऑट टू के बाद क्या है V1 आता है, तो ऑट टू एक मॉडल है, उसके बाद हैव के बाद हमेशा V3 आएगा। तो लर्न लर्नड लर्नड, लर्न हो गया क्या V1, लर्न क्या है LEARN, लर्न हो गया V1, LEARNT लर्न हो गया V2 एंड LEARNT लर्न अगेन हो गया क्या V3। क्लियर है? ओके तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक कंफ्यूजिंग पेयर है जो कि कंफ्यूज कर देता है मीनिंग वाइज, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये क्या है, टू मेक अनट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, टू मूव इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन चला गया, यहाँ पे होना चाहिए था, उसको थोड़ा सा देख लेना। टू मूव इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। नेक्स्ट क्या है, टू सैक्रिफाइस टू कीप इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस लेड का मतलब क्या है, टू सैक्रिफाइस टू कीप इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ले एग्स, इसका मतलब यह है। इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग पेयर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ओके, चलो 5 मिनट नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, चुन चुन के एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो भी सीखे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे और कुछ न्यू चीज़ भी सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ओके एक्सरसाइज, तो फास्ट का कुछ बताओ, फास्ट को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले तो फास्ट सेंटेंस को नहीं छोड़ते। ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, क्या हो जाएगा, कहाँ पे एरर है? बताओ। नहीं नहीं नहीं, यूज टू कैसे होगा, इसमें ही तो एरर है। रोज का मत, हाँ रेज्ड, रेज्ड RAISED रेज्ड होगा। रेज का मतलब क्या है, देखो वेरी गुड, देखो राइज रोज राइजन, इसका मतलब क्या है, टू गेट अप, टू प्रोग्रेस, टू एसेंड। अब रेज का मतलब क्या है, टू अपलिफ्ट, मतलब टू आस्क समथिंग, टू कलेक्ट समथिंग, ठीक है। इसका V2 क्या है, रेज्ड। अब ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, ही वॉज, तो पास्ट में ही रखेंगे सेंटेंस को, ठीक ना। तो ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रेज्ड,
RAISED हो जाएगा, रेज्ड, दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस। क्लियर है? ओके ओके, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको घर में कोशिश करना करने के लिए, ठीक है? और इसका करके एक काम करना, इसको होमवर्क करके थोड़ा सा ग्रुप में भेज देना, बाकी जो सारे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आंसर इसको बना के भेज देना, ठीक है? कहाँ पे रड़े, मैं उसको आंसर लिख दूंगा, कोई बात नहीं, जवाब मैं लिख दूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है? तो इसमें एरर है रेज में, so he could keep it very easily। इसको करो, 5 को, 5 और 6 को करो। स्क्रीनशॉट ले लिए ना पहले वाला साइड का? के नेक्स्ट 5 और 6, आंसर 5 का, ही रिटर्न द पर्स, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, कुड हैव केप्ट हो जाएगा ना, कि वो रिटर्न किए लेकिन वो उसको रख सकता था लेकिन नहीं रखे, ঠিক না? পার্টস যেটা ওটাকে রিটার্ন করে দিয়েছে, কিন্তু পার্টসটাকে ও নিজের কাছে রাখতে পারতো কিন্তু রাখেনি। दैट्स वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही कुड हैव केप्ट, तो क्या हो जाएगा, कुड हैव केप्ट, KEPT, हैव के बाद V3 आना चाहिए, तो कीप हो गया V1, फिर कीप केप्ट, केप्ट हो जाता है V2 एंड केप्ट हो जाता है V3। ये क्या है, V3 है, तो ही कुड हैव केप्ट। वेरी गुड, नेक्स्ट बताओ आंसर। वेरी गुड, शुड हैव ब्रॉट हो जाएगा, क्यों, ब्रिंग ब्रॉट, इट्स वेरी कोल्ड हियर, आई शुड हैव ब्रॉट माई वुलन क्लोथ्स बट आई डिडेंट। ये हिडिंग मीनिंग यहाँ पे दे दिया गया है, इसको देना नहीं चाहिए था, ठीक है, दे दिया गया है, तो फिर क्या हो जाएगा, आई शुड हैव ब्रॉट। वेरी गुड वेरी गुड, एक बारी में सीख लिए तुम लोग। आई शुड हैव ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, ठीक है, ब्रॉट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दो जो है वो कर लेना घर पे। तो इसमें एरर है, इसमें भी एरर है। नेक्स्ट वर्ड टू नेम फॉर इज नॉट माइंड, ओके, इसे छोड़ दो, इसको करो। 12 को बताओ, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगैन टू राइज। बोलो बोलो बोलो। along the bank of the river, वेरी गुड। देखो, राइजन कभी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसके आगे क्या है, 2 लगा हुआ है, 2 के बाद तो हमेशा V1 आता है ना, तो राइजन हो जाए क्या, V3, कभी नहीं कर सकते राइजन, ठीक है? ये क्या है, वो तो पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, ये एक पार्ट है, द रोड बिगन टू राइज, ये अलग सा पार्ट है, तो कॉमन सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, द रोड, तो द रोड को कॉमन सब्जेक्ट मान के पहले बिठाते हैं,
द रोड वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, कभी हो सकता है क्या? द रोड, इसका मतलब इसमें कुछ लोचा है, गलत है। तो कौन चल रहा था? मैं चल रहा था। क्या हो जाएगा ये? आंसर बिल्कुल सही दिए कि वाइल आई वॉज वॉकिंग, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लिखो वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगैन टू राइज। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ज़्यादा देगा। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है वो डिस्कस कर दिए थे इंट्रोडक्शन में। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये चीज़ ज़्यादा देगा, एरर में उतना नहीं देगा, क्योंकि एरर में इतना बड़ा मतलब 2-3 वर्ड नहीं ऐड करने को बोलते वो लोग, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो ज़्यादा देता है। तो एरर की तरह से ही समझ लो, तो फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे होना चाहिए, क्या हो जाएगा? सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि while I was walking along the bank of the river, while I was walking along the bank of the river, the road began to rise. ठीक है, while I was walking along the bank of the river, the road began to rise. ठीक है, ओके, यही तक रखेंगे इसको कर लो। 13 पेन पेपर ले लेना, इसका रूल्स लिखना है। कोई इसको बता सकता है क्या होगा? मेरे ख्याल से नहीं बता पाओगे, बताओ। नो 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 नो, ये थोड़ा सा हटके हैं। लिख लो, नोट डाउन कर लो। लिखो इट्स टाइम कॉमा इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम इट्स हाई टाइम, comma, whenever these phrases are used in a sentence, it's time, it's high time, whenever these phrases are used in a sentence, the entire sentence will be converted, the entire sentence will be converted into simple past tense, into simple past tense, into simple past tense. I'm repeating it. It's time, it's high time, whenever these phrases are used in a sentence, the entire sentence will be converted into simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? यही तो है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है ना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स टाइम यू डिसाइडेड, इट्स टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्या हो जाएगा? इट्स टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर है? না, ইট ইজ টাইম টু ইউ না, হ্যাঁ ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ টু এখানে ইউজটা হয় না। ইট ইজ টাইম টু ইউ বলতে পারিনি, ইটস টাইম একটাই ফ্রেজ। ইটস টাইম, ইটস হাই টাইম, ইটস হাই টাইম টু ইউ না। হুম 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 হুম, এটা তো রং ইউজ। কলোকুয়াল ইংলিশে আমরা অনেক কিছু ভুল ইউজ করে থাকি, যেমন দেখবে কাম অ্যাক্রস আর সাডেনলি দুটো একসাথে ইউজ করে ফেলি অনেক সময় আমরা, না? আই সাডেনলি কাম অ্যাক্রস ইউর ফ্রেন্ড ওয়াইল কামিং টু মাই কলেজ, বলে থাকি, বলি তো। তো সাডেনলি আর কাম অ্যাক্রস কি দুটো একসাথে কখনো ইউজ হয়? না। হ্যাঁ, সেটাও আমরা এই ক্ষেত্রে বলে থাকি, বাট বলাটা আর গ্রামাটিক্যাল ইউজ সেটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে, মনে রাখবে। ক্লিয়ার? সো ইটস টাইম, ইটস হাই টাইম, যখনই ফ্রেজগুলো থাকবে কোনো ফ্রেজে,
the entire sentence will be converted into simple past tense. So our answer will be decided, not decide. It will be decided. Okay. Verb basic advance যতটুকু রুলস ডিসকাস হলো এর বাইরে কোনো কোশ্চেন থাকবে না। আর যে এক্সাম্পলগুলো তোমাদের এখানে দেওয়া আছে, the example that I have provided but not discussed, please try it once at your home. আর আমাকে কোশ্চেনের আনসারগুলো পারলে গ্রুপে পাঠানোর চেষ্টা করো, দেখছি তারপরে। ক্লিয়ার? যতটুকু রুলস ডিসকাস হয়েছে এর বাইরে কিছু আসার নেই। স্ক্রিনশট সবাই নিয়ে নিয়েছো লাস্ট স্লাইডের? ওকে, চলো আজকে তাহলে এইটুকুই রাখছি। থ্যাংক ইউ ফর your cooperations and participating in this class. Ta bye bye. Welcome.